Dear students, we have started the colloidal. In that we studied the types of colloidals, then distinguish between lyophobic and lyophilic, and examples of colloids. In that we will continue. These are the examples like fog, mist and rain. These are also examples of colloids. Mist is caused by small droplets of water dispersed in air, and fog is formed whenever there is a temperature difference between ground and air. देखो मिस्ट जो क्या होता है, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं हवा में. फॉग इज फॉर्म्ड व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड वाटर टेम्परेचर. धुके बोलते हैं ना हम, जैसे वो होता है फॉग. A large portion of air containing dust particles get cooled below its dew point. The moisture from the air condenses on the surface of these particles, which form fine droplets, which are colloid particles and float in air as a fog or mist. फॉग और मिस्ट देखो कैसे जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो कूलिंग टेम्परेचर होता है, बिफोर दैट they will form a dew point, and the moisture from the air they will get condensed on the surface of these particles, which form a fine droplets. तो जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो बाहर जो लीव्स है, पेड़ है, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो दे आर मिस्ट और फॉग. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं बिकॉज इट इज़ द फॉग और मिस्ट. तो यहाँ पे ये कोलॉइड्स होते हैं. Now here we'll study the classification of colloids, that is lyophilic and lyophobic. In distinguish also we studied this lyophilic and lyophobic. See, this classification is based on the accordance with physical state of disperse phase and dispersion medium, and it is on the based on their affinity or interaction of phases. On the basis of interaction or affinity or phases, a colloidal solution is classified as lyophobic or lyophilic. If water is a dispersion medium, then the terms lyophilic, hydrophilic is used, and hydrophobic. Hydro की जगह क्यों यूज करते हैं hydro word? Because if the water is a dispersion phase or dispersion medium, अगर water है तो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. ना फोबिक और फिलिक का मीनिंग तो डिस्टिंग्विश में मैंने बताया है. फिलिक मीन्स दे आर लविंग, फोबिक मीन्स दे आर हेटिंग. तो उनके बारे में और बताया गया है. सो लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग. अ कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम. जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होता है, एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है. इफ़ द लायोफिलिक सोल इज इवेपोरेटेड, अगर हम उसको इवेपोरेट करते हैं, द डिस्पर्स फेज सेपरेट्स, तो वो डिस्पर्स फेज जो है वो सेपरेट हो जाता है. बट इफ़ इट इज़ रीमिक्सड विद द मीडियम, द सोल कैन बी फॉर्म्ड अगेन. इसीलिए इसे रिवर्सिबल कहा जाता है. देखो अगर जो लायोफिलिक सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको रीमिक्स करते हैं तो इमीडिएटली सोल बन जाता है. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल सोल, एंड दे आर स्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू कोएगुलेट. कोएगुलेट नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं और स्टेबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लायोफोबिक. नाउ फोबिक मीन्स heating. Colloidal solution in which particles of the dispersed phase have no affinity for the dispersion medium are lyophobic colloids. Phobic means fearing, hence liquid hating the देखो एग्जाम्पल्स क्या है इसके. सिल्वर, Ag is a silver, Au is a gold, hydroxide like aluminum hydroxide and ferric hydroxide metal sulfides. ये ऐसे एग्जाम्पल्स है कि वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में ज़्यादा एफिनिटी नहीं होती. सो दे हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम.
So phobic means fearing or liquid hating. So once precipitation and coagulated, they have no tendency to revert back to the colloidal state. अगर एक बार उनका precipitation हो गया तो वो फिर से colloid solution नहीं देते. मतलब क्या है? It is a irreversible. Why? Because they have no affinity towards dispersion phase. Okay, so lyophobic and lyophilic का distinguish भी है और ये थोड़ा सा explanation भी है. Then we have the classification of colloids based on molecular size. अभी molecular size के ऊपर इनका classification कैसे है वो देखते हैं. देखो, classification of colloids on the basis of their molecular size is it is having multi-molecular colloids. Multi-molecular colloids मतलब the individual particle consist of an aggregate atoms or small molecules with the less than 10⁻³ पिकोमीटर. देखो इनकी साइज कैसे होती है कोलॉइडल्स की. इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट एटम्स. एक ही इंडिविजुअल एटम है लेकिन वो क्या करता है, उसकी साइज कितनी है, इट इज़ अराउंड और इट इज़ लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर. पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है. तो इतना छोटा होता है ये. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज हैविंग सेवरल गोल्ड एटम्स. colloidal solution in which particles are held together with the van der Waals forces of attraction is called multimolecular colloid. For example sulfur 8 molecule. देखो sulfur 8 भी जो गोल्ड सोल है ये दिस इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस साइज हैविंग सेवरल गोल्ड एटम्स. एक का गोल्ड का ही पार्टिकल अगर लेते हो so it belongs to the gold only. It will show the properties of gold and it consists of several gold atoms in that. So it is called as multimolecular colloid. उसके साथ सल्फर 8 का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. मैक्रो मीन्स बहुत बड़े. The molecules of the dispersed phase are sufficiently large in size, that is macro, to be colloid. Nylon plastics. देखो ये क्या होता है यहाँ पे, they have a affinity to form a large size of them of the colloidal dimension. मतलब बहुत बड़े molecules हो जाते हैं. जैसे पॉलीमर्स होते हैं. पॉलीमर्स आर द कंपाउंड्स दे आर हैविंग द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स. वैसे रेयॉन्स है, पॉलीथीन है, प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सारे बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है और दे आर हैविंग कोलॉइड्स. सो दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. बहुत बड़े साइज होते हैं इसमें. थर्ड क्लासिफिकेशन है इट इज़ एसोसिएटेड कोलॉइड्स और माइसिल्स. एसोसिएटेड कोलॉइड्स और माइसिल्स कैसे होते हैं, देखो ये द सब्सटेंस बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट at low concentration and associated in high concentration forming a colloidal solution. देखो सब्सटेंस क्या करते हैं, दे बिहेव लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड एसोसिएटेड एंड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन. कम कॉन्सेंट्रेशन है तो वो सिंगल सब्सटेंस रहेंगे, लेकिन अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या करते हैं, दे एसोसिएट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे को भी इकट्ठा कर लेते हैं एंड दे विल फॉर्म अ colloidal solution. So associated particles are called micelles. और वो कैसे एसोसिएट होते हैं, with the help of हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक हेड है जो बाहर की तरफ है. तो वहाँ पे कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएगा. सो वंस वाटर मॉलिक्यूल विल गेट अट्रैक्ट एट दैट पॉइंट दे विल फॉर्म एसोसिएटेड कोलॉइड्स और माइसिल्स. देखो सोप माइसिल्स इन वाटर का जो देखो सोप माइसिल्स मीन्स जब साबुन का जहाग बनता है, फेस फोम बनता है, तब ये
प्रेजेंस होता है, तभी ये ऐसे दिस थिंग्स अकर व्हेन सोप इज फॉर्मिंग फोम। देखो, soap molecules have a long hydrophobic hydrocarbon chain called tail। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जिसको वाटर से लगाव नहीं है। अटैच विथ हाइड्रोफिलिक आयोनिक ग्रुप कार्बोक्सिलेट कॉल्ड हेड। हेड कैसे है? इट इज हाइड्रोफिलिक, सो इट इज अट्रैक्टिंग water molecule towards itself. In water, the soap molecules arrange themselves to form spherical particles that are called micelles। देखो, तो in water soap molecules will arrange themselves to form spherical particles, they are called as micelles। देखो, जैसे ये अभी ऊपर स्ट्रक्चर दिया है, ये है सोप माइसिल इन वाटर। तो सोप क्या करता है? इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। फिलिक है जो बाहर की तरफ है, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सच ए माइसिल्स द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स पॉइंट्स टू द सेंटर और एंड द हाइड्रोफिलिक टेल्स हेड लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो टेल है वो अंदर की तरफ है और हेड जो है वो बाहर की तरफ है। As the result of this, soap dispersion in the water is stable। तो वो सोप का जो डिस्पर्जन है वो स्टेबल हो जाता है। After this we have the preparation of colloids, but it is omitted 11.9. ये वाला करना है 11.9.5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल डिस्पर्जन, इसकी प्रॉपर्टी और टिंडॉल इफेक्ट करना है। देखो, विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन होते हैं। तो वेरियस प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोलोइडल डिस्पर्जन आर डिस्कस्ड बिलो। तो देखो, ये ऐसे है एक्चुअली। द जनरल प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है? कोलोइडल सिस्टम इज हेट्रोजीनियस एंड कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कोलोइडल कैसे है? दे आर हैविंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, consist of disperse phase and dispersion medium। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? they are having the disperse phase particles pass slowly through parchment paper or normal animal membrane but readily pass through ordinary filter paper। देखो, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? दे स्लोली मूव थ्रू पार्चमेंट पेपर। एक पार्चमेंट पेपर ऐसे होता है कि जिसमें से डिस्पर्स फेज मूव हो जाता है, मतलब फिल्टर पेपर से छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर रहते हैं तो वो मूव हो जाते हैं वैसे। सो इट विल मूव। और एनिमल मेम्ब्रेन भी एक ऐसे होता है एनिमल का मेम्ब्रेन, जिससे थ्रू विच द डिस्पर्स फेज विल पास बट रेडीली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रहेगा तो ये डिस्पर्स फेज जल्दी पास हो जाता है। सो द पार्टिकल यूजुअली आर नॉट डिटेक्टेड बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। देखो, इसके जो पार्टिकल्स है ये यूजुअली डिटेक्ट नहीं होते। सो स्पेशल माइक्रोस्कोप वी हैव टू यूज टू डिटेक्ट द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज एंड देन वी हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। देखो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड एज टिंडॉल इफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ करो और जो थ्योरी है वो 2-3 बार पढ़ो। दिस टिंडॉल ऑब्जर्व्स, टिंडॉल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who observe all these things he studied about the colloidal solution and he represented their property, that is optical property। कैसी है उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? तो देखो, टिंडॉल ऑब्जर्व दैट
when light passes through true solution, the path of light through it cannot be detected. ट्रू सोल्यूशन मतलब ऐसे सोल्यूशन होता है कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों कम्प्लीटली सल्यूट पार्टिकल उसमें डिजॉल्व होता है, वो क्लियर सोल्यूशन होता है. जैसे अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रू सोल्यूशन. And colloidal means it is a suspended particles are there. They are heterogeneous, but they are there in the solution. So disperse phase and dispersion mediums are there. तो जब ट्रू सोल्यूशन के ऊपर अगर हम लाइट पास करते हैं, देन इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड. तो हमें कुछ डिटेक्ट नहीं होता है, वो लाइट पास हो जाता है नॉर्मली. नाउ हाउएवर some light in all direction and the path of light through colloidal dispersion becomes visible to observer standing at the right angle to its path. देखो यहाँ पे आपको दो बॉटल्स रखे हुए हैं कि एक में ट्रू सोल्यूशन है और एक में कोलोइडल सोल्यूशन है, और यहाँ पे बीम ऑफ लाइट इज पासिंग, उसके ऊपर फोकस कर दिया तो हमें पहले इसमें दिखाई देता है कि कुछ डिफेक्ट नहीं हुआ, वो आराम से चला गया. After that second bottle is kept, we observe that some scattering is observed or some light is observed in the second bottle, that is colloidal dispersion जहाँ पे है वहाँ पे. ये क्यों हुआ? It is because the phenomenon of scattering of light by colloidal particles and making path of light visible. ये स्कैटर हो जाता है लाइट, जो भी कोलोइडल सोल्यूशन के ऊपर लाइट गिरती है, then it will make a path of light visible. जहाँ से लाइट जा रही है वो हमें दिखाई देती है. That is called as Tyndall effect. The bright cone of the light is called Tyndall cone. ये देखो कोन दिखता है ना आपको, ये जो है उसे Tyndall cone कहते हैं. Tyndall effect is observed only when the following conditions are satisfied. देखो क्या कंडीशंस है. The diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of light used. जो लाइट हम यूज़ करें उसका जो वेवलेंथ रहता है उससे अगर कम होगी पार्टिकल की साइज तो वो पॉसिबल नहीं है. The refractive indices of disperse phase and dispersion medium differ largely. देखो refractive indices and of disperse phase and dispersion medium they differ largely means their जो refractive index होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, वो डिफरेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए. तो ये है उसके कंडीशंस. अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडॉल इफेक्ट. इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलोइडल सिस्टम एंड द पार्टिकल साइज देयर इन. तो हम ये यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कोलोइडल सोल्यूशन एंड द साइज इन देम. जो पार्टिकल्स उसमें है उसका साइज कितना है और कितने हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टिंडॉल इफेक्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलोइडल डिस्पर्जन एंड ट्रू सोल्यूशन. तो हमें अगर पता होना चाहिए आगे, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज ट्रू सोल्यूशन और कोलोइडल, वी कैन यूज़ द टिंडॉल इफेक्ट. अगर ट्रू सोल्यूशन है तो उसमें से लाइट पास हो जाएगी बट इट इज़ नॉट डिटेक्टेड. बट इफ इट इज़ अ कोलोइडल देन वी कैन सी द path of light visible to the observer. So we will detect this is the colloidal solution. So today you will write down about colloidal solution और Tyndall effect. Tyndall effect के बारे में आप लिखो और ये डायग्राम निकालो. So this is your homework. ओके. तो ये आपको लिखना है और प्रॉपर्टी याद रखो. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, कोलोइडल डिस्पर्जन है उसकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी है वो, और इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडॉल इफेक्ट. टिंडॉल इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है.